ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ میں اپنی زندگی اپنے مطابق جیتا تھا۔ میں نے آج تک کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ کوئی میری زندگی میں دخل دے، سوائے میری ماں کے۔ وہ جو بھی کہتی تھی میں سر جھکا کر تسلیم کر لیتا تھا، کیونکہ میں صرف اپنی زندگی میں اس رشتے کے علاوہ کسی کو بھی اپنا نہیں مانتا تھا، اور لڑکیوں اور عورتوں کو قابو کرنے والا یہ طریقہ بھی مجھے میری ماں نے ہی بتایا تھا۔ میں اپنے آپ میں رہنے والا انسان تھا۔ میں نے اپنا آبائی گھر بھی چھوڑ دیا تھا۔ میرے ابا نے مجھے بہت روکا تھا کہ تم اس طریقے سے گھر کو چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن اس کے باوجود بھی میں بنا کسی کی پرواہ کیے اس گھر کو چھوڑ آیا تھا۔ مجھے صرف اپنی ماں سے غرض تھا، اور جو چیز میں اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں دیکھ چکا تھا، اس کے بعد مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں یہاں پر مزید رکتا۔ میں نے بس اپنی ماں کو بتایا تھا اور ان سے اجازت لے کر میں نکل آیا تھا، لیکن انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں ہفتے میں ایک بار ان سے ملنے ضرور آؤں۔ میرا دل تو بالکل بھی نہیں تھا، لیکن ماں کا کہنا بھی میں کسی طور پر نہیں ٹالتا تھا۔ میں بہت خوددار قسم کا انسان تھا۔ میں نے جب سے اپنا ہوش سنبھالا تھا، میں اپنے بلبوتے پہ زندگی گزارتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ سے کچھ بھی نہیں لیتا تھا۔ اس وجہ سے آج میں نے ان کا گھر بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب میں اپنے ذاتی فلیٹ میں رہتا تھا۔ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں تھا۔ میں خاموشی سے جاتا تھا اور خاموشی سے گھر واپس لوٹ آتا تھا، اور ہفتے والے دن اپنی ماں سے چند گھنٹے کی ملاقات کر کے واپس آ جاتا تھا۔ میری زندگی میں بہت ہی خوبصورت ایکٹیویٹی موجود تھی۔ میری ماں نے جو طریقہ مجھے بتایا تھا عورتوں کو قابو کرنے کا، وہ میرے بہت کام آتا تھا۔ میرے پاس ایک ایسی جگہ بھی موجود تھی جس سے میں لڑکیوں کو قابو کر کے اپنا دیوانہ بنا لیتا تھا، پھر ان کے ساتھ وقت گزارتا۔ یہی سب میرا کام تھا۔ میری زندگی میں تہلکہ تو جب آیا جب میری بیوی میری ماں کو لانے کا شوق جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں تمہاری شادی ہر حال میں کرواؤں گی، جبکہ میں روز ہی ان کو انکار کر دیتا تھا کہ میں ابھی شادی جیسے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں ابھی اپنا کریئر بنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی میں شادی جیسی سنت کو نبھاؤں گا۔ میرے لیے شادی کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نواز دیا تھا کہ میں جس بھی لڑکی پر ہاتھ رکھتا وہ مجھے انکار نہیں کرتی۔ ویسے بھی میری شخصیت بہت خوبصورت تھی، کوئی بھی لڑکی میری طرف فوراً ہی مائل ہو جاتی تھی۔ میرے دفتر میں بھی بہت سی ایسی لڑکیاں موجود تھیں جو مجھ سے دوستی کی خواہش مند تھیں، اور زیادہ آ کر میرا دل چاہتا تو میں آرام سے ان کو اپنا دیوانہ بنا لیتا تھا، لیکن میں اپنی ریزرو طبیعت کی وجہ سے کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا تھا۔ ایک روز جب میں اپنے گھر کی اپنی ماں سے ملاقات کے لیے گیا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئی تھی اور ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہی تھی کہ مجھے تمہاری شادی ہر حال میں کروانی ہے، جبکہ میں ہمیشہ کی طرح ان کو انکار ہی کر رہا تھا۔ لیکن آج ان کا ایسا رویہ مجھے خود پریشانی میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کر رہی تھی، نہ ہی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میری ماں میرے لیے سب کچھ تھی۔ مجھے میری ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی تھی۔ جب میری ماں نے مجھے ایک بار پھر زور دیا تو میں ان کو انکار نہیں کر پایا اور شادی کے لیے حامی بھر دی، لیکن میرا دل و دماغ اس چیز کے لیے ابھی تک رضامند نہیں تھا۔ وہ تو پہلے ہی ساری تیاریاں کیے بیٹھی تھی۔ میری ہاں کرنے کی دیر تھی کہ انہوں نے فوراً ہی میرے لیے ایک لڑکی کا رشتہ بتا دیا۔ انہوں نے تصویر دکھانی چاہی تو میں نے اشارے سے انکار کر دیا اور ان کو یہ بول کر ٹال دیا کہ جس کو آپ پسند کریں گی وہی میری پسند ہوگی۔ میرا بس یہ کہنا تھا کہ میری ماں کے چہرے پر الگ ہی چمک سی آ گئی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی میرے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور کہنے لگی، میری سب اولادوں میں سے تم سب سے بہترین اولاد ہو۔ مجھے تمہارے سے کوئی غرض نہیں ہے سوائے تمہاری ذات کے۔ مجھے اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے۔ میری ماں کی یہ چند اشعار میرے لیے بہت اہم تھے۔ میری ماں مجھے ہمیشہ ہی بہت عزیز تھی، اور ان کے لیے میں بھی سب سے اہم اولادوں میں سے ایک تھا۔ میں نے بس اپنی ایک شرط رکھی تھی کہ میں شادی تو کر رہا ہوں، لیکن بنا کسی بھی رسم و رواج کے میں خاموشی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے میری بات کو بالکل اہمیت نہیں دی اور اپنے مطابق میری شادی کو بہت دھوم دھام سے کیا۔ میں نہیں جانتا تھا ابھی تک میری بیوی دیکھنے میں کیسی ہے اور وہ کس طریقے کی عورت ہے۔ میں بس سنت رسول نبھانے اور اپنی ماں کو خوش کرنے کی خاطر اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی، لیکن یہاں پر میری دلی خواہش موجود نہیں تھی۔ میری امی میری دلہن کو ہمارے آبائی گھر لے کر آنا چاہتی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی اس بات پر اعتراض کر دیا کہ میں اب وہاں پر نہیں رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو چیز میں وہاں دیکھ چکا تھا میرا بالکل دل نہیں تھا وہاں رہنے کا۔
मैंने अपनी माँ से कहा मैं अपने फ्लैट पर ही दुल्हन को लेकर जाऊंगा। मेरी माँ ने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया और उन्होंने मेरी दुल्हन को मेरे फ्लैट पर ही मुंतकिल कर दिया। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, सब चीज़ें मेरे बहन भाई ने ही तैयार कर ली थी। मुझे इस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा कमरा भी उन्होंने ही सजा दिया था और मेरी दुल्हन को बिठाकर वो लोग वहां से चले गए थे। घर में अब सिवाय मेरे और मेरी दुल्हन के कोई नहीं था, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं थी। मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे इस घर के अंदर कोई भी मौजूद ना हो सिवाय मेरे। मैं हर रोज की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे नाक के नथनों से गुलाब की पत्तियों की खुशबू टकराई। मैंने हैरत से अपने कमरे में फैले हुए गुलाब और सामने बैठी हुई खुशबू में नहाई हुई अपनी बीवी को देखा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैं खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ। मैंने सबसे सुन रखा था कि निकाह के बाद शुक्राने के नफल अदा किए जाते हैं। मैंने भी खामोशी से अपने शुक्राने के नफल अदा किए और एक तरफ को जाकर लेट गया। मेरी बीवी ने मुझे हैरान होकर देखा। वो समझ रही थी यकीनन मैं उसके हुस्न की तारीफ करूंगा या फिर उसको खराज तहसीन पेश करूंगा, लेकिन मैं उसकी तरफ बिल्कुल भी मतवज्जो नहीं था। मैं खामोशी से करवट बदल कर सो गया था। मैं जानता तक नहीं था कि मेरी बीवी इस पर क्या गुजर रही होगी। न जाने किस पहर मेरी आंख लग गई और सुबह में अपनी बीवी को उठाने से उठ गया। वो मुझे फजर की नमाज के लिए उठा रही थी। मेरी नींद बहुत कच्ची थी, मुझे नींद बहुत मुश्किल से आती थी, जिसकी वजह से अगर कोई मुझे नींद से जगाता था तो मुझे बेशुमार गुस्सा आ जाता था। मैं अभी अपनी बीवी को झिड़कता, इससे पहले ही मुझे यकदम होश आया कि वो नई नवेली दुल्हन है। इस वजह से मैंने खुद को काबू कर लिया कि वो मुझे फजर की नमाज की दावत दे रही थी। मैं ऐसे तो नमाज नहीं पढ़ता था, जब दिल चाहता था तो पढ़ लेता था, लेकिन जब उन्होंने मुझे उठाया तो अपनी खफत मिटाने के चक्कर में मैं उठकर नमाज पढ़ने लगा। वो लड़की भी मेरे पीछे ही नमाज पढ़ने लगी। अभी तक मैंने उसकी जानिब गौर से देखा भी नहीं था कि वो कैसी नजर आती है, जबकि अभी तक वो बिल्कुल खामोश थी। उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी और ना ही मैंने उससे बात करना मुनासिब समझा था। नमाज पढ़ने के बाद मैं वापस अपनी जगह पर जाकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। अचानक ही वो लड़की मेरे बराबर में बैठ गई और कुरान पाक की तिलावत करने लगी। इसकी आवाज़ काफ़ी भली थी। मैंने करवट बदलकर एक दफ़ा उसकी जानिब देखा और दोबारा आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ मेरे कानों में आने की वजह से मुझे नींद ना आई और मैं खामोशी से लेटकर उसकी तिलावत सुनने लगा। न जाने किस पहर मेरी आंख दोबारा लग गई और मैं दोपहर में कोई 1 बजे के करीब उठा। मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल मुझे महसूस हो रही थी। मैं समझ चुका था कि मेरे घर वाले मेरे फ्लैट में आए हुए हैं। मैं अपनी जगह से उठा और फ्रेश होकर बाहर आया तो मेरी दुल्हन मेरी माँ के बराबर में मुस्कुराकर सबसे मिल रही थी। एक पल के लिए मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसकी जानिब देखना भी गवारा नहीं किया था। उसके बावजूद भी वो मेरी माँ के साथ मुस्कुराकर बात कर रही थी, लेकिन मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं भी अपनी माँ के बराबर में बैठ गया और उनसे हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगा। मेरी माँ ने मुझे खपकी भरी निगाहों से देखा और कहने लगी, ये कोई वक्त है तुम्हारा उठने का? नई नवेली दुल्हन तुम्हारे घर में मौजूद है और तुम इस वक्त उठ रहे हो? मैंने बात को आई गई करके घुमा दिया। मेरे भाई बहन और मेरे माँ बाप हम लोगों को दुआएं देकर जा चुके थे और मैं भी बिना किसी को बताए अपने दोस्तों के पास चला गया था। मेरी बीवी घर में अकेली थी और मुझे इस बात का कोई होश नहीं था। मैंने कितनी लड़कियों को अपना दीवाना बनाया हुआ था। मैं वो चीज़ खाकर आराम से लड़कियों को अपना दीवाना बना लेता था, लेकिन न जाने मुझे अपनी बीवी से बिल्कुल दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। इस वजह से मैं बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं रात को बहुत देर से घर आया था। वो मेरे इंतजार में अभी तक जाग रही थी। मेरे घर में घुसते ही उसने मुझसे खाने का पूछा, लेकिन उसके बाद भी मैं बिना उसको जवाब दिए वापस से अपनी जगह पर सो गया। मैं अपनी बीवी के जज्बात से नाशना इसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए जा रहा था, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई एक वजूद भी शामिल हो चुका है। मेरी माँ अगले रोज़ हमारे घर आ गई और हमारे यहाँ पर ही ठहरने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर रही थी। जब उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं तुम्हारे घर रुकने के लिए आई हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ बहुत ज़रूरी थी। अगला रोज़ भी जैसे तैसे गुजर गया और फजर के वक्त मेरी बीवी ने मुझे एक बार फिर जगाया कि नमाज पढ़ ले। एक पल के लिए मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब क्या कर सकते थे? नींद तो टूट ही चुकी थी। इस वजह से मैंने नमाज पढ़ने में ही आफियत जानी। वो पहले दिन की तरह ही नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत करने लगी और मैं भी उसके बराबर में लेटकर सो गया। आज मुझे सोने में काफ़ी परेशानी नहीं हुई थी। अगले रोज़ भी मेरा अंदाज लिया दिया ही था और मैं रोज़ तो घर लौटकर वापस आया ही नहीं था। पूरी रात मैं बाहर ही मौजूद था। मेरी माँ भी अपने घर वापस जा चुकी थी, लेकिन जब मैं दोपहर के वक्त घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ गुस्से से मुझे घूर रही थी, जबकि मेरी बीवी कमरे के अंदर मौजूद थी। मैंने इधर उधर निगाहें घुमाकर उसको ढूंढने की कोशिश की तो वो मुझे नजर नहीं आई,
लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत गुस्से से घूर रही थी। मैंने उनकी जानिब बैठकर सलाम दुआ की। उसके बाद पूछा, आप मुझे इतना गुस्से से क्यों घूर रही हैं? तो वो मुझसे कहने लगी, तुम रात भर कहाँ थे? ये सवाल मुझे टटकने पर मजबूर कर चुका था। यकीनन मेरी बीवी ने इनसे कोई बात बोली थी जिसकी वजह से उनका रद्द-ए-अमल ऐसा आ रहा था। वो मुझसे दोबारा यही सवाल दोहराने लगी कि तुम रात भर कहाँ थे? उन्होंने मेरे जवाब देने से पहले ही मुझे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी कि तुम अपना घर इस वजह से ही छोड़कर आए थे और तुम भी तो यही कर रहे हो। मैं उनकी बात सुनकर चुप हो गया। वो दुरुस्त बोल रही थी। मैं अपना घर इन चीज़ों की वजह से ही तो छोड़कर आया था। मेरे भाई अपनी बीवियों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते थे। मेरा बाप मेरी माँ की जानिब देखना भी गवारा नहीं करता था और यही चीज़ें मुझे गुस्सा दिलाती थी। इस वजह से मैं अपना आबाई घर छोड़कर अकेला यहाँ शिफ्ट हो गया था फ्लैट पर। मुझे इनकी बातें बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही थी क्योंकि वो अक्सर औकात मुझे मेरी लापरवाहियों की वजह से डांटती रहती थी। लेकिन आज मुझे बहुत गुस्सा आया था क्योंकि वो मुझे बार बार मेरी बीवी का हवाला देकर डांट रही थी कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक वजूद भी शामिल है, तुम इस तरीके से इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। वो तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारे लिए पूरा खानदान छोड़कर आई है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस कदर गुस्सा आ रहा था कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अंदर मौजूद इसका वजूद जो है उसका बुरा हाल कर दूं। लेकिन मैंने अपने गुस्से को काबू किया और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मेरी बीवी इशा की नमाज अदा कर रही थी। मैं जाकर बेड पर बैठ गया और उसकी नमाज मुकम्मल होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसने सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो मैं बगौर उसका चेहरा ही देख रहा था। आज मैं उसको बहुत गौर से देख रहा था। वो यकदम ही दुआ मांगते हुए हिचकियों से रोने लग गई। यकीनन वो मेरी मौजूदगी से गाफिल थी। मैं बहुत हैरान हो रहा था कि वो इस कदर क्यों रो रही है। मुझे जो गुस्सा अभी थोड़ी देर पहले उसके वजूद पर आ रहा था वो बिल्कुल झाग की मानिंद बैठ चुका था। अब मैं मुतजस्सिस का शिकार था कि आखिर वो दुआ मांगते हुए इतना ज़ारो के तार क्यों रो रही है। उसकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद नहीं थी, इस वजह से मैं उसकी दुआ को सुन नहीं पाया था। एक पल के लिए मेरे जहन में ये ख्याल आया, शायद वो किसी से मोहब्बत करती होगी जब ही रो रही है। उसने जब हाथ फेर कर जाए नमाज उठाई तो यकदम ही उसकी नज़र मेरी जानिब उठी। मैं बेड पर ही बैठा हुआ था। उसने मुझे देखते ही हैरानगी का इजहार किया और कहने लगी, आप कब आए? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उससे ही उल्टा सवाल करने लगा, तुम नमाज पढ़ते हुए इतना ज़ारो की तार क्यों रो रही थी? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? मेरा लहजा थोड़ा सर्द हो गया था। उसने मेरी बात सुनी और तहम्मुल से कहने लगी, न जाने मुझसे क्या खता सरजनिश हो गई है जिसकी वजह से मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ है। मैं उनको ही रो रो कर मनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज़ हो गया है? तो वो कहने लगी, यकीनन अल्लाह मुझसे नाराज़ है, जभी तो मेरा शौहर मेरी जानिब देखना भी गवारा नहीं करता है। उसकी यह बात मुझे बहुत चुभी और मैं यकदम ही परेशान हो गया। मैं बिना उसको जवाब दिए कमरे से बाहर आ गया। मैं काफ़ी देर तक उसके बारे में ही सोच रहा था और उसने आज मुझे ऐसी बात क्यों कही है। शादी के चंद दिन बाद मुझे एहसास हुआ था कि मैंने अपनी बीवी की जानिब देखना भी गवारा नहीं किया था, बल्कि उसको कोई अहमियत देना भी ज़रूरी नहीं समझा। और आज पहली बार मैं खुद से उससे मुखातिब हुआ था। मुझे अपनी वही पुरानी बातें याद आने लगी, कैसे मैं वो चीज़ रख कर औरतों को काबू करता था और यहाँ मेरी बीवी के सामने उसके साथ मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। मैं रात के पहर जब कमरे के अंदर गया तो वो मुझसे कहने लगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो आज शादी के बाद पहली बार मुझसे मुखातिब हुई थी। मैंने उसकी बात सुनी और कहने लगा, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि आप जानते हैं बीवियों के भी कुछ हकूक होते हैं। मैं उसकी बात से ठटका लेकिन खुद की हैरत पर काबू पाकर कहा, जी मुझे मालूम है बीवियों के भी कुछ हकूक होते हैं और मैं अपने हकूक बखूबी अंजाम दे रहा हूँ। तो वो कहने लगी, हकूक सिर्फ ज़रूरियात की चीज़ों को पूरा करने से अदा नहीं हो जाते हैं, इसके अलावा भी बीवियों के कुछ हकूक होते हैं। मैं उसकी बात बहुत अच्छे से समझ चुका था। मैं उसकी बात को कैसे न समझता। मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं था। बोलकर मेरी जानिब खिसक गई और मुझसे छेड़खानी करने लगी। मैं उसका मतलब समझ चुका था कि वो मुझसे क्या चाहती है। वो छोटी मोटी जसारतें कर रही थी। जब उसने पहल की तो मुझे भी मजबूरन उसका साथ देना पड़ा और उस रात उसने मुझसे अपने तमाम हक हासिल कर लिए थे। मैंने ये भी सोचा हराम की तरफ राग़िब होने की बजाय हलाल ही को मुँह लगाना चाहिए। इस वजह से मैंने अपनी बीवी के हकूक अदा कर दिए थे उसे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी में क्या पलटावा होने वाला है। मेरे ज़हन गुमान में भी नहीं था मैं अब किसी दोराहे पर आ जाऊंगा। मुझे खुद इन हरकतों पर हैरत होती थी, लेकिन मैं क्या करता। मैं ये सब कुछ खुद नहीं करता था, अपने आप ही ये सब कुछ मुझसे सरजनिश हो जाता था। मैं अपने काम से तकरीबन 10 बजे के बाद वापस आता था, लेकिन आज सुबह काम पर जाने के बाद मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं वहाँ लग रहा था, बल्कि रात के ही लम्हात मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगे थे।
मैं बेकरार होकर अपनी बीवी के बारे में ही सोचे जा रहा था। इस औरत ने एक रात में ही मुझ पर एक ऐसा जादू किया था कि मैं बिल्कुल भी अपने हवास में नहीं रहा था। मैं जो रात के तकरीबन 10 बजे के बाद घर वापस आता था, आज मैं अपना काम जल्दी ख़त्म करके 8 बजे ही घर के अंदर मौजूद था। मेरी बीवी ने मुझे देखकर बड़ी हैरत का इजहार किया और कहने लगी, आप तो रात के 10 बजे तक आते हैं और आज आप इतनी जल्दी आ गए, सब खैरियत है ना? मैंने बहाना घड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा क्योंकि मुझे झूठ से सख्त नफरत थी। मैंने फ़ौरन ही उसको आराम से बोल दिया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से मैं जल्दी घर वापस आ गया। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मुझे खाना इनायत कर दें ताकि मैं कुछ पल आपसे सुकून हासिल कर सकूं। मेरा ये कहना था कि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा ही खुश होगी। उसके चेहरे की वो खुशी मुझे भी खुश कर गई थी। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर रहे थे और रफ्ता रफ्ता वो लड़की अपनी नेक नीयती और साफ गोई के साथ मेरे दिल और मेरे घर में जगह बना चुकी थी और मुझे कुछ करना और खाना भी नहीं पड़ा था। अब हर रोज़ ही मैं उसके जगाने पर मुस्कुराकर नमाज के लिए उठ जाता था और जब वो कुरान पाक की तिलावत कर रही होती थी तो उसकी गोद में सर रखकर मुस्कुराकर सुन रहा होता था। मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर रंगीन हो गई थी। मेरी माँ का ये फैसला गलत नहीं था। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक लड़की को शामिल करने के बाद मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया था। मैं अब हर रोज़ ही रात को जल्दी घर जाया करता था और इसके साथ बहुत खुश इखलाकी के साथ वक्त बिताता था। मेरी बीवी बहुत मिलनसार खातून थी। वो मेरी माँ के साथ और मेरी बहनों के साथ बहुत बना कर रखती थी। मैं ये सब चीज़ें बहुत बारीक बीनी से नोट करने लगा था और घर में दिलचस्पी मेरी हद से बढ़ गई थी। एक रोज़ मैं जब घर से जाने लगा तो अचानक ही मुझे ख्याल आया कि मैंने दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बीवी को आवाज़ दी। वो फ़ौरन ही मेरी आवाज़ सुनकर बाहर आई तो मैंने बेसाख्ता उसके माथे पर एक बोसा दे दिया और अल्लाह हाफिज़ बोलकर घर से चला गया। और जब मैं रात को घर वापस लौट कर आया तो मेरी बीवी के अंदाज ही बदले बदले से थे। उसके चेहरे पर लाली बिखरी हुई थी। मैं नहीं जानता था कि मेरा इस तरीके से इसको थोड़ा सा सामान देना खुश कर देगा। मैंने यही सोचा कि अगर इतने से ही काम चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ये कोई बड़ा सौदा नहीं है किसी को खुश करने का। अब मैं हर रोज़ ही दफ्तर जाने से पहले उसके माथे पर एक बोसा दे देता था। मेरी बीवी जितना भी घरेलू मामलात में फंसी होती, वो फ़ौरन ही जहर जाने से पहले मेरे पास आकर खड़ी हो जाती थी। बाज़ औक़ात अगर गलती मुझसे सरज़निश हो जाती और वो मुझसे नाराज़ होती थी, इसके बावजूद भी वो मेरे जाने से पहले दरवाजे के पास खड़ी होती थी। मैं नहीं जानता था वो लड़की कब मेरे दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। एक रोज़ मैं अपनी बीवी की गोद में सर रख कर ही लेटा हुआ था कि मुझे यकदम ही ये ख्याल आया और मैंने उससे सवाल ये किया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मेरा ये सवाल सुनकर वो थोड़ी ताज्जुब ज़दा हो गई और कहने लगी, आपको क्या लगता है? मैंने उसकी बात सुनकर धीरे से कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और ये बात मैं यकीन से बोल सकता हूँ। वो धीमा सा मुस्कुराई और मेरे माथे पर बोसा देकर कहने लगी, मैं आपकी दीवानी हूँ, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क है और मैं नहीं जानती कि ये कब मेरे साथ हुआ। निकाह होते ही मुझे आपसे बहुत अपने अपने से लगने लगे। मेरे लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता सिवाय आपके रिश्ते के। ये अल्फाज मेरे लिए इतने ज़्यादा अहमियत रखते थे कि मैं इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। मैं बिल्कुल खामोशी से उसकी गुफ्तगू को सुन रहा था। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और मैं एक लफ्ज़ भी बोल नहीं पा रहा था। मेरी माँ ने मुझे हमेशा ही एक बात सिखाई थी कि औरत ज़ात की इज्जत करो, उसके साथ शफ़क़त से पेश आओ, उस पर गुस्सा ना करो, जब भी गुस्सा आए उसको पी जाओ। मेरे दफ्तर में भी जो लड़कियां मेरे साथ काम करती थी वो मेरी दीवानी थी क्योंकि मैं हमेशा ही किसी पर गुस्सा नहीं करता था बल्कि गुस्सा हमेशा ही पी जाता था, जिसकी वजह से हर लड़की ही मेरी दीवानी हो जाती थी। और औरत को सबसे ज़्यादा वही मर्द पसंद आते हैं जो गुस्सा नहीं करते हैं बल्कि उनकी बात को अहमियत देते हैं और खामोशी से उनकी बातों को सुनते हैं। मैंने भी हमेशा अपनी बीवी की बातों को ध्यान से सुना था और उसकी बातों और उसका बचकाना हरकतों पर गुस्सा करने की बजाय उसको अहमियत और मान दिया था, जिसकी वजह से न जाने वो कब से मुझसे मोहब्बत करने लगी थी और मेरी दीवानी हो गई थी। मेरा गुस्से को पी जाना मेरी बीवी को मेरे काबू में कर गया था। वाकई उसने अपने हर रिश्तों को अल्लाह हाफिज बोल दिया था और मेरे साथ जिंदगी के सफर में आगे बढ़ गई थी। पहले पहल तो मेरे लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया था जिंदगी में हम सफर की बहुत जरूरत पड़ती है। हम सफर इंसान को जिंदगी में कामयाब बना सकता है। भले हम सफर खूबसूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन दीनदार और नेक सीरत होना चाहिए। मेरी बीवी भी आम औरतों की तरह ही थी, लेकिन इसमें बहुत खास सबसे ये बात थी कि वो मुझे समझती थी, मेरी बातों को अहमियत देती थी और मुझे मान देती थी। मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मुझे ज़िंदगी की तरफ लेकर आई थी, जिसकी वजह से वो मेरे दिल में खामोशी से ही जगह बना चुकी थी। मैं उससे बहुत खामोश मोहब्बत करने लगा था। मैंने कभी भी अपनी मोहब्बत का इज़हार उसके सामने नहीं किया था, लेकिन वो मुझे बहुत अजीज़ थी। उसका अपने मैके चले जाना मुझे उदास कर जाता था। मैं वापस अपने आबाई घर जाकर खुशियाँ तलाशता था, लेकिन वो खुशियाँ जो मुझे उसके वजूद से महसूस होती थीं, वो मुझे कहीं भी नहीं मिलती थीं। मर्द कामयाब वही है
جو اپنے غصے کو پی جائے، لیکن آپ لوگ بھی غصے کو پی جایا کریں اور لڑکی اپنی دیوانی ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی۔